السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرتارپور راہداری 9 نومبر کو کھول دیں گے وزیر اعظم۔ بھارت کی LOC پر اشتعال انگیزی جوابی کارروائی میں 9 بھارتی فوجی ہلاک۔ شہدائے کربلا کا چہل ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ آزادی مارچ کے لیے JUI کے کارکنوں کو ہدایت جاری۔ پاک بحریہ نے 32 رکنی ٹرانس ریجنل میری ٹائم نیٹ ورک میں شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان اگلے سال گرے سے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا حماد اظہر۔ ملک بھر میں سرد موسم کا آغاز۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات، رہنماؤں کے وعدے، دعوے اور اسکینڈلز۔ کینیڈا میں وزیر اعظم کی سیٹ کے 2 اہم امیدوار صحافیوں کے سوال سے کترانے لگے۔ میکسم برنیئر نے اپنے خلاف مہم کی شکایت کینیڈین الیکشن کمشنر کو درج کروا دی۔ پول کے مطابق لبرلز ایک بار پھر کنزرویٹو سے آگے نکل گئے۔ اور کینیڈا میں خزاں کا موسم اپنے اختتام کو۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ کرتارپور راہداری 9 نومبر کو کھول دیں گے۔ بھارت سمیت دیگر ملکوں سے سکھ سب سے بڑے گردوارہ کی یاترا کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہداری کا ہر کام آخری مرحلے میں ہے۔ کرتارپور راہداری 9 نومبر کو کھول دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ کرتارپور راہداری 9 نومبر کو کھول دیں گے۔ بھارت سمیت دیگر ملکوں سے سکھ سب سے بڑے گردوارہ کی یاترا کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ٹریولنگ، مذہبی ٹورزم، مہمانداری میں بڑے پیمانے پر ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بدھ مت کے پیروکار بھی پاکستان میں مذہبی مقامات پر آتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کرتارپور راہداری کا افتتاح حسب وعدہ 9 نومبر کو کریں گے اور وہ راہداری کھول دی جائے گی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 5000 سکھ یاتری یہاں تشریف لائیں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سکھ یاتریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کیے ہیں اور اگر سرحد کے اس پار بھارت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا ہمارے انتظامات سے موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے انتظامات کتنے وسیع، ٹھوس اور بہتر ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹر پر بھارتی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی، جبکہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 9 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹر پر بھارتی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی، جبکہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 9 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے جوڑا، شاہ کوٹ اور نوسہری سیکٹرز میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال شدید فائرنگ کی، جس پر پاک فوج نے بھی مؤثر جواب دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا 1 سپاہی اور 3 شہری شہید، جبکہ 2 سپاہی اور 5 شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر بھارتی فوج کے 9 سپاہی ہلاک اور دشمن کے 2 بینکرز تباہ کر دیے گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں ہر ممکن طبی سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارتی فوج نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارت دہشت گردوں کے مبینہ کیمپوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹ چھپانے کے لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان اور مقامی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کو آزاد کشمیر میں مکمل رسائی حاصل ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انہیں یہ آزادی حاصل نہیں۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا ہمیشہ بھرپور جواب ملے گا۔ پاک فوج لائن آف کنٹرول کے ساتھ وہاں آباد شہریوں کی مکمل حفاظت کرے گی اور بھارتی فوج کو اپنے اقدام پر بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز
और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों का चहलम मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चहलम के जुलूस बरामद हुए और मजालिस मुनक़िद हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहदाए करबला का चहलम मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तफसीलात के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों का चहलम मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चहलम के जुलूस बरामद हुए और मजालिसें मुनक़िद हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लाहौर में चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिक्योरिटी के हवाले से 15,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की तैनाती के अलावा ज़ायरीन को 4 सतही सिक्योरिटी हिसार से गुजारा गया। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। शहर कायद में जुलूस की गुजरगाहों को बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग करवाई गई, जबकि अहम व बुलंद इमारतों के ऊपर शार्प शूटर्स भी तैनात रहे। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जुलूस के हमरा मौजूद रही, जबकि सुराख रसा कुत्तों की मदद से भी जुलूस की गुजरगाहों को चेक किया गया। जुलूस के रास्ते में आने वाली सड़कों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। कराची में मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ऐलान करदा आज़ादी मार्च के लिए कारकुनों को इंतजामात की हिदायत जारी कर दी गई। आज़ादी मार्च में JUIFA के कारकुन सिलेंडर, चूल्हे और बिस्तर साथ लाएंगे। जहां रोका गया वहीं धरना देकर उस शहर को लॉकडाउन कर देंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ऐलान करदा आज़ादी मार्च के लिए कारकुनों को इंतजामात की हिदायत जारी कर दी गई। आज़ादी मार्च में JUIFA के कारकुन सिलेंडर, चूल्हे और बिस्तर साथ लाएंगे। जहां रोका गया वहीं धरना देकर उस शहर को लॉकडाउन कर देंगे। मार्च से कबल JUIFA मोटरसाइकिल सवार रैलियां निकालेंगे। तबलीगी जमात की तर्ज पर कारकुन आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। एक हसास इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक JUIFA की मीटिंग्स का सिलसिला उरूज पर है। कारकुनों को गिरफ्तारी से बचने की हिदायत की गई है। हसास इदारों ने मार्च के हवाले से रिपोर्ट्स मुरतब करना शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च और धरना तबलीग की तर्ज पर होगा। 10 से 12 कारकुनों पर एक जमात होगी, 2 खादिम होंगे। खादिम तब्दील होते रहेंगे। हर जमात मिलजुल कर इमदाद वाहिमी के तहत पैसे इकट्ठे करके मार्च में शरीक होगी और खाना वगैरह पकाएंगे। इस तरह धरना और मार्च के अखराजात पूरे किए जाएंगे। गिरफ्तारियों पर खुद ब खुद अमीर भी तब्दील हो जाएंगे। कारकुनों को हिदायत की गई है कि हर मुमकिन सूरत गिरफ्तारी से बचा जाए और हर कारकुन अपनी माली हैसियत के मुताबिक मार्च में शरीक होगा। जमीयत के वकला और डॉक्टरों की जिम्मेदारी खिदमत पर मामूर होगी। वकला अपने कारकुनों को मुफ्त कानूनी मामलत और डॉक्टर्स मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करेंगे, जिनके साथ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का सामान हमरा होगा। मार्च से कबल 100 मोटरसाइकिल सवारों की टोलियां मुल्क भर में रैलियां निकालेंगी, जिसमें पार्टी परचम के साथ और खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि 27 अक्टूबर को ही इस्लामाबाद पहुँचा जाए। मार्च 1 नवंबर या 1 के बाद भी पहुँच सकता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी के मुताबिक पाक बहरिया ने ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद ने नेवल हेडक्वार्टर में मुआहदे की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया ने इटली में कायम 32 रुकनी ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क में शमूलियत इख्तियार कर ली। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी के मुताबिक पाक बहरिया ने ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद ने नेवल हेडक्वार्टर में मुआहदे के दस्तावेजात पर दस्तखत किए। नेटवर्क में शमूलियत का मकसद समंदर से मुतालिका मालूमात के तबादले में सहूलत फराहम करना है। इस मौके पर इटली के सफीर भी मौजूद थे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क में शमूलियत से पाकिस्तान नेवी को समंदरी उमूर से मुतालिक मजीद मालूमात तक रसाई हासिल होगी। इटली में कायम ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क में 32 ममालिक शामिल हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि तमाम रेगुलेटरी और कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई महकमे भी मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान 2020 में ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू हमाद अजहर का कहना है कि पाकिस्तान को दिया गया एक्शन प्लान किसी भी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है। वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू हमाद अजहर का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान को मजीद बेहतरी के लिए फरवरी 2020 तक का वक्त दिया है। गुज़िश्ता साल बिलखुसूस आखिरी 4 माह में होने वाली पेशरफ्त का एतराफ़ किया गया, ताहम इस हवाले से मजीद काम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को दिया गया एक्शन प्लान किसी भी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान का हदफ FATF एक्शन प्लान के तमाम अहदाफ मुकम्मल करना है। तमाम रेगुलेटरी और कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई महकमे भी मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान 2020 में ग्रे से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुल्क भर में सर्दी धीरे धीरे एंट्री दे रही है। दर्जा हरारत में मुसलसल कमी जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। मुल्क भर में सर्दी धीरे धीरे एंट्री दे रही है। दर्जा हरारत में मुसलसल कमी जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। उन इलाकों में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुजरावाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अजला में चंद मकामात पर बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, ताहम मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुजरावाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अजला में बारिश हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किया जाने वाला कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 24, लाहौर में 18, पेशावर में 16, कोयटा में 8, मुजफ्फराबाद में 11, गिलगित में 8, फैसलाबाद में 16, मुल्तान में 18 और हैदराबाद में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।